welcoming you all to today's online session for Standard 12 Statistics Part 2, Chapter number 2, Random Variable and Discrete Probability Distribution. Till now we have solved exercise 2.1 and 2.2. Coming to the sums of final exercise, that is exercise C. Question number 1. The probability distribution of a random variable x is as follows. You are given with x 2, 3, 4, 5. You are given with px 0.2, 0.3, 4c and c. You got to find the value for constant c. Okay. Sigma px is equal to what? P2 plus P3 plus P4 plus P5 is equal to what? 0.2 plus 0.3 plus 4c plus c equal to 1. Therefore, 5c equal to 1 minus 0.5. ये 0.5 उधर गया तो minus 0.5. 5c equal to 0.5. c equal to 0.5 upon 5. c equal to 0.1. Number 2. Calculate mean of the discrete probability distribution where px equal to x minus 1 upon 6. एक दिया हुआ है x minus 1 upon 6 जहाँ पे आपका x है 2 and 3 और दूसरा दिया है equal to 1 upon 2 जहाँ पे आपका x है 4. ओके, हमें फाइंड करने को बोला गया है फाइंड मीन फाइंड करना है. ओके, अगर x के टेबल बनाते हैं 2, 3 और 4 px अगर 2 यहाँ पर रखा है 2 minus 1 1 upon 6 3 को 3 minus 1 तो 2 upon 6. ठीक है, ये 1 upon 2 6 का एलसीएम नहीं किया है अगर तो मल्टीप्लाई बाय 3 that is 3 by 6 x into px मीन फाइंड करना है. 2 ones are 2 2 upon 6 3 to the 6 upon 6 4 3s are 12 upon 6. okay, total 2 plus 6 8 8 plus 12 20 by 6. हमें मीन फाइंड करना है मतलब Ex इक्वल टू सिग्मा x इंटू px इज इक्वल टू 20 by 6 मतलब के 10 by 3. नंबर 3. The probability distribution of random variable is as follows. px आपको दिया है x plus 3 upon 10. px आपको दिया है x plus 3 upon 10 where x equal to 2 1 2 x equal to minus 2 1 2 minus 2 1 2 तो पहले p minus 2 plus 1 upon 10 minus 2 plus 3 upon 10 that is 1 upon 10 then p1 1 upon 1 plus 3 upon 10 that is 4 upon 10 then p2 2 plus 3 upon 10 that is 5 upon 10. x क्या था अपने पास minus 2 1 और 2. px क्या आ गया 1 upon 10 4 upon 10 5 upon 10. we have been asked for ex square. हमें फाइंड करना है ex square. ठीक है, पहले x into px कर लेते हैं. minus 2 upon 10 4 upon 10 10 upon 10. इससे तो हमें मीनिंग मिलता है, फाइंड नहीं करना है. x square into px करना है. x into px into x x कर हो जाएगा तो ये आ गया 4 upon 10 ये आ गया 4 upon 10 ये आ गया 20 upon 10 टोटल 28 upon 10. हमें x स्क्वायर करना है. सिग्मा x स्क्वायर into px 28 upon 10 मतलब के 2.8. Number 4th sum. n equal to 4 symmetrical binomial distribution then p4 फाइंड करना है. n equal to 4 p symmetrical मतलब p half q half होगा. ओके, हमें p4 फाइंड करना है. px equal to ncx px q n minus x 4c4 1 upon 2 4 1 upon 2 0 4c4 1 2 4 8 16 into 1 that is 1 upon 16. Number 5.
This type of sums are going to be asked in the board examination for 2 marks. Number 5 is theoretical. Number 6, for a binomial distribution, the probability of success is double that of the failure. Success जो है वो double of failure है. Success is double of failure. n equal to 4. हमें variance फाइंड करना है, मतलब हमें n p q फाइंड करना है. Okay. n equal to 4. p equal to 1 minus p. q मतलब 1 minus p होता है. p equal to 2 minus 2p. Minus 2p यहाँ पे तो plus. p plus 2p equal to 3p equal to p equal to 2 upon 3. तो q equal to 1 upon 3. हमें वेरिएंस करना है, मतलब कि n p q n है 4 into 2 by 3 into 1 by 3, that is 8 by 9. Number 7. Find the standard deviation of the binomial distribution having n equal to 8 and probability of failure is 2 by 3. n 8 दिया है, q दिया है 2 by 3. Okay. n 8 दिया है, q दिया है 2 by 3, तो p आएगा 1 upon 3. स्टैंडर्ड डिविएशन बोला है, मतलब रूट n p q अंडर रूट 8 into 2 by 3 into 1 by 3 into 1 by 3 into 2 by 3, कोई फर्क नहीं पड़ता. अंडर रूट 16 upon 9, मतलब कि 4 upon 3. नंबर 8. फाइंड द पैरामीटर्स दे के रखा है. मीन दिया है, एनपी दिया है 4, एनपी क्यू दिया हुआ है 2. एनपी दिया है 4, एनपी क्यू दिया है 2. सो एनपी क्यू अपॉन एनपी कर लेते हैं. 2 upon 4, एनपी एनपी कर, 2 1s are 2 2s are, तो q equal to 1 upon 2, तो p भी 1 upon 2. np equal to 4 है, n पता नहीं, p 1 upon 2 equal to 4. n equal to 4 multiplied by 2 upon 1, n यहाँ पे आ गया 8. आगे मेरे पैरामीटर्स n और p होते हैं, which we have learned in the previous lecture. Number 9. For a binomial distribution n 10 है, q minus p equal to 0.6 है. ओके, हमें मीन फाइंड करना है. n 10 है, n 10 है, q minus p equal to 0.6, तो q equal to 0.6 plus p. p plus q equal to 1 होता है. p plus 0.6 plus p equal to 1, तो 2p equal to 1 minus 0.6, 2p equal to 0.4, p equal to 0.4 upon 2, p equal to 0.2, p 0.2, तो q 0.8. n दे के रखा है. What we got to find? हमें मीन फाइंड करना है. मीन मतलब np. मीन मतलब कि np फाइंड करना है. 10 into 0.2, that is 2. Number 10. For a binomial distribution, standard deviation is 0.8. Okay. And probability of failure is 2 by 3. हमें फाइंड करना है मीन यहाँ पे. Okay. तो standard deviation दिया 0.8. नंबर 10. स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 0.8, q दिया है 2 by 3, तो p आएगा 1 by 3. अंडर रूट n p q मतलब दिया है 0.8. ओके, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू रूट n p q. ये दिया आपको 0.8 अंडर रूट. n हमें पता नहीं. ओके, p क्या है 1 by 3, q क्या है 2 by 3. ये रूट को निकालना, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 0.64 इक्वल टू n into 2 by 9. ये 9 now multiply 0.64 multiplied by 9 upon 2, that is n. So n equal to 0.32. Let me multiply 0.32 into 9. देखते हैं 0. हमें सीधा मीन ही फाइंड करना है ना. हमें मीन फाइंड करना है. कुछ नहीं, हम इससे n भी फाइंड कर देते हैं. जस्ट वेट. into 9.
2.88 ये आ गया मेरा n, मीन मतलब np 2.88 मल्टीप्लाई बाई p है मेरा 1/3 डिवाइडेड बाई p 0.96। मीन का आंसर आ गया मेरे यहाँ पे 0.96। तो वॉच द सम केयरफुली, इट्स ऑलरेडी डन इन द बोर्ड इटसेल्फ। देख लीजिए आराम से कैसे मुझे सम को यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे करना है। You will be able to see it properly. Sum number 1, as you can see, हमें C पूछा गया था। सम नंबर 2 में px दिया है x-1/6, x इक्वल 2 and 3, फिर 1/2 x दिया 4। सीधा वैल्यूज मैंने पुट अप यहाँ पे की है। देन सम नंबर 3, px देख रखे x + 3/10, x दिया -2, 1 and 2, वैल्यूज पुटअप किया, टेबल फॉर्मेट में वैल्यूज पुटअप किया। हमें ex² पूछा गया था। ओके, देन सम नंबर 4, n = 4, p हाफ दिया सिमेट्रिक है, p हाफ q हाफ, हमें p4 फाइंड करने को बोला गया है। फॉर्मूला रखी, p4 की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। सम नंबर 5 जो है बर्नौली-ग्रास की थियरी है। सम नंबर 6, सक्सेस इक्वल डबल दैट ऑफ फेलियर। ओके, Q मतलब 1 - P होता है, तो इससे मैंने P की वैल्यू निकाली। P अगर 2/3 है तो Q आ गया मेरा 1/3। वेरिएंस पूछा गया NPQ। ओके, देन सम नंबर 7, N8 Q 2/3 तो P 1/3। स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा, फॉर्मूला रखा, वैल्यूज पुटअप करी मैंने। देन सम नंबर 8, मीन दिया है, वेरिएंस दिया है, इससे Q मिला तो मुझे P भी मिल गया। P + Q = 1 होता है। NP4 दिया, इससे मैंने N की वैल्यू फाइंड यहाँ पे कर ली। ओके, देन सम नंबर 9, एंड देन दिया Q - P 0.6 दिया, -P उधर गया तो +P हो गया। ओके, तो P + Q = 1 है। Q की वैल्यू पुटअप की 0.6 + P से मुझे P मिल गया। जैसे ही P मिला मैंने Q भी लिख दिया। मीन फाइंड करने को बोला गया था। सम नंबर 10, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया 0.8, Q दिया 2/3, P दिया 1/3, फाइंड कर लिया। मतलब √NPQ दिया 0.8, तो फॉर्मूला लिखी, स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल √NPQ 0.8 इंटू √n नहीं पता, इंटू 1/3 2/3 तो आ गया 2/9। रूट निकालने के लिए 0. का स्क्वायर किया 0.64, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 2 किया। सो आई गॉट द आंसर फॉर n 2.88। NP फाइंड, मीन फाइंड करने को बोला है। 2.88 मल्टीप्लाई बाय 1/3 0.96। So these are the short sums which are going to be asked in the board examination for 2 or 3 marks basically we can say। So आपको ये सम की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। सम्स आर वेरी मच इजियर, जैसे आपको वैल्यूज पुट अप करना है, आना चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स इज देयर इन द सम इटसेल्फ। ओके, शॉर्ट सम्स है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसका मास्टरी आ जाएगी ऑन दिस पर्टिकुलर सम्स। सो आई रिक्वेस्ट कि आप प्रैक्टिस यहाँ पे करते रहे घर पे बैठे बैठे। ये सम्स की सेक्शन सी के अंदर आई थिंक 9, 10 मतलब 9 सम्स अवेलेबल है। 2, 3, 4 बार प्रैक्टिस यहाँ पे करते रहे, विल बी एबल टू सॉल्व द सम्स। इवन आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स इवन कि चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस आपको करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट चैप्टर carries 12 marks। इवन फर्स्ट पार्ट इज ओवर, 4 चैप्टर्स आर ओवर, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दैट सम्स इवन। ओके, हर रोज हर चैप्टर के एटलीस्ट 5 से लेके 6 सम सिलेक्ट करते रहो। कीप द प्रैक्टिस, तो आपको हर चैप्टर रिवाइज में रहेगा, तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। ओके, सो आई होप यू आर डूइंग व्हाट वी आर सेइंग टू यू फ्रॉम दिस साइड। You are following all the instructions given by the teachers, each and every teachers, because we want that you score good marks in this pandemic situations even. Okay, because board is not going to relieve anybody for the situations. Whatever you are going to write in the answer sheet, only that marks will be counted in the board. So I request you all, work hard, work smart, keep on practicing the sums again and again. Okay, thanking you, yours faithfully. I hope so that you are doing what we are telling it from our side.
वी आर डूइंग अवर बेस्ट फ्रॉम अवर साइड. हो सकता है आप में से अगर 20% बच्चे भी सुनते हैं, इंस्ट्रक्शन हमारे फॉलो करते हैं, तो माइट बी पॉसिबल 20% बच्चे का रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा. सो वी आर डूइंग अवर बेस्ट फॉर द 20% इफ दैट 20% इज वर्किंग फॉर अस. So thank you again. Okay, stay home, stay safe, keep learning.